Good morning, friends. This is the second part of the chapter Nelson Mandela for Standard 10th NCERT syllabus. Nelson Mandela we had already read in part 1 of my video. Now we are going to start part 2. So, as this chapter is very long one, so we have to read it into parts. So, first part we had done. Today we will read third part, second part. Okay. So second video for this chapter Nelson Mandela, explanation in Hindi also. I am going to start with you. This is Nelson Mandela part 2. Part 2. So part 2 begins from here. After the completion of first question answer, yeah, from here. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. After some time, we saw in the sky that there were planes in the sky of South Africa. They were jets, and jets means aeroplanes, and they were performing there. As we all know that on the occasion of national importance, these types of performances are done. So, African jets are flying in the sky. Helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union building, where the ceremony was going on, ceremony for presidentship of the country. New government was taking oath. There, this ceremony was going on, and so in the sky, jets were flying, they were doing their performance. It was not only a display of pinpoint precision and military force. ये आसमान में प्लेन उड़ाना कोई मिलिट्री फोर्स का ही प्रदर्शन था ऐसा नहीं है, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन of the military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. This display was not only the display for the military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. डेमोक्रेसी के प्रति उनका समर्पण. इसके पहले क्या था, कैसा गवर्नमेंट था वहाँ पर? तो गवर्नमेंट थी वहाँ पर अपार्थीड को फॉलो करने वाली, रंग भेद, ऑन द सिस्टम ऑफ कलर, discrimination was the main point of the policies of the government. Here today they are going to show respect for democracy, because new government is completely democratic one. To a new government that had been freely and fairly elected. This new government was fairly and freely elected by the general elections in the country, and in that country Mr. Nelson Mandela was elected the president of the country, and so that's why the ceremony of swearing in ceremony was going on. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, they are just bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. थोड़ी देर पहले वहाँ आर्मी के और पुलिस के बड़े लोग आए थे और उन लोगों ने मुझे सैल्यूट किया था अपने पूरे वर्दी के साथ, पूरे स्टाइल के साथ. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मंडेला का विचार है, वो बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले यही आर्मी वाले लोग, पुलिस वाले लोग उनको अगर देखते तो पकड़ लेते, गिरफ्तार करते, और आज वो आकर के सैल्यूट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, पावर ऑफ बीइंग इन गवर्नमेंट. Finally, a chevron of Impala jets left
smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और तब आपको समूह में जेट विमान आसमान में आए और रंग बिरंगे भिन्न भिन्न रंगों के प्रदर्शन किए और इस प्रकार से साउथ अफ्रीकन फ्लैग को उन्होंने वहाँ शो किया। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड for me by the playing of our two national anthems। That day, two national anthems were sung there, and the vision of white singing कोशी शिकेलेल ये अफ्रीका, वाइट लोगों का जो सॉन्ग था नेशनल सॉन्ग वो भी गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, तो ये दोनों डाइस्टेम क्या है, ब्लैक लोगों का सॉन्ग था नेशनल एंथेम, और कोशी सिकेलेल अफ्रीका ये वाइट लोगों का नेशनल सॉन्ग था। तो दोनों सॉन्ग को वहाँ संग किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ मैटर ऑफ कंसिडरेशन दैट इन आवर कंट्री we forced Britishers completely to go away from here. We did not accept their national anthem in our country. We practiced only our own national anthem. But in South Africa, they accepted white supremacy also, and blacks were also accepted there. So both the national anthems were sung there. दो राष्ट्रीय गान वहाँ हुए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। उस दिन ब्लैक लोगों को वो जो वाइट लोगों का था नेशनल एंथम, बहुत लोगों को याद भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग याद कर लेंगे। On the day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history। जिस दिन शपथ ग्रहण मेरा हो रहा था उस दिन मेरे दिल में, मैं खुशी से मेरा दिल भरा हुआ था। ओवरवेल मतलब खूब भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, खुशी से मेरा दिल भरा हुआ है। तो माई हार्ट वॉज ओवरवेलमिंग विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास बना रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार हुआ था, उसके कुछ समय बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मंडेला के बर्थ के पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। ये डार्क स्किन पीपल का लैंड था साउथ अफ्रीका, और उसमें व्हाइट पीपल आए और उन्होंने अपना डोमिनेशन साबित किया। डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व, उन्होंने सत्ता को कैप्चर कर लिया, पावर को गैदर किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, एंड आफ्टर दैट दे प्रैक्टिस्ड डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज। उन्होंने रंग भेद की नीतियों को फॉलो किया, और इस प्रकार से पूरी दुनिया में ऐसी घृणास्पद शासन व्यवस्था कहीं नहीं थी जैसा उन्होंने लागू किया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज ए मैन, 80 साल का अब मैं हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स regardless of the color of their skin। So this is the difference between these two governments। Now Mandela's government is going to take power, and in this government they would follow the freedoms of all peoples without any discrimination on the basis of color or their skin। बिना रंग भेद के सबको जीने का बराबर अवसर मिलेगा, ये मंडेला बोले। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid। आज जो आज़ादी मिली है उन अनगिनत लोगों के प्रयास से मिला है, जिनके सफरिंग को आप भुला नहीं सकते। I felt that day as I never own, so
many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मेरे पहले बहुत सारे देशभक्तों ने देश के लिए कुर्बानी दी. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained with that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. आज जो हमारे पहले जो लोग मर गए देश के नाम पर, उनके उनके सैक्रिफाइस ने, उनके त्याग, उनके बलिदान ने क्या परिवर्तन लाया है देश में, वो देखने के लिए वो नहीं है, लेकिन मेरे रूप में वो कार्य आज पूर्ण हो रहा है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ये रंगभेद के अलगाववाद की जो नीति चली, उसके द्वारा देश में हमारे लोगों के दिल में गहरे घाव बने. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स if not generations recovering from that profound hurt. उस गहरे घाव से निकलने में जनरेशन लग जाएंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी मतलब बर्बरता, और ऑपरेशन मतलब दबाव और बर्बरता की जो नीतियाँ उन्होंने लागू की, ये दशकों तक रहेंगी. अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट it produced the Oliver Tambos and Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadouj, the Bram Fishers, the Robert Sobukius of our time. ये ऐसे ही जो दबाव होता है, विदेशी अत्याचार होते हैं, तो देश में ये जो नाम लिया गया है, ऐसे लोग, ऐसे देश प्रेमी लोग पैदा होते हैं जो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं देश के लिए. आफ्टर दैट courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. इन लोगों का जो साहस था, जो उनकी बुद्धिमानी थी, जो उनकी करुणा थी देशवासियों के लिए, वो दोबारा कभी नहीं होगा. ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं. Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character. तो जितना दबाव देंगे उतना ही हाइट वाला कैरेक्टर पैदा होता है. इन लोगों ने दुख झेला, इसलिए इतना ऊंचा कैरेक्टर पैदा हुआ. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known with that its greatest wealth of its people. हमारे देश में बहुत मात्रा में खनिज लवण है, खान है बहुत, लेकिन देश के लिए सबसे बड़ा जो रत्न है वो क्या है, तो इंसान है. I have always known as its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamonds. शुद्ध से शुद्ध हीरा से ज़्यादा कीमती हमारे देश में जो हीरा है वो यहाँ के लोग हैं, ऐसा मंडेला का विचार है. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड मतलब साथी, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इन्हीं साथियों से मैंने साहस की परिभाषा सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने लोगों को एक उद्देश्य के लिए जान की कुर्बानी देते हुए देखा है. I have seen men stand up to attacks and for torture without breaking. मैंने लोगों को अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए देखा है, बिना टूटे हुए संघर्ष करते हुए. showing a strength and resilience that defies the imagination. जो कल्पना से परे साहस उन्होंने दिखाया, त्याग किया. I learned the courage, that courage was not the absence of fear. ये मंडेला बोले कि करेज का मतलब क्या है, वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, डरेगा नहीं, डर नहीं होगी, ऐसा नहीं है. बट द ट्रैम्प ओवर इट, डर के आगे जीत है, डर को जीत जाना यही करेज है. द ब्रेव मैन इज नॉट द ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर. कंकर मतलब जीतना, बहादुर वो है जो डर को जीत जाए, डर के आगे जीत है. ये मंडेला साहब बोले. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. किसी को रंग के आधार पर, उसके जन्म की जो पृष्ठभूमि है उसके आधार पर, कलर के आधार पर आप उसमें मतभेद नहीं कर सकते. धर्म के आधार पर पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. लव और हेट एक दूसरे का अपोजिट है. लव क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से आदमी प्यार करता है एक दूसरे से, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये लोग उसमें हेट पैदा करते हैं. इवन इन द गिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जो प्रिजन का मेरा काल था, दुख भरा समय,
When my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई दबाई जा सकती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अच्छाई दबा सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। ये अब देखा हम लोगों ने। क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा। ये सिर्फ चैप्टर का मीनिंग मैंने शेयर किया आपसे। इसके बाद थर्ड वीडियो भी आएगा, जिसमें इसके बाद का पार्ट होगा, और क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो होगा, जिसमें ओनली क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे आपके पास। सो आई होप दैट you will be satisfied, your need will be fulfilled. So thank you for viewing. Have a nice day. Please share, like and subscribe.